हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सबको हमारे इस मंच पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर सेशंस में हम डिस्कस करेंगे G20 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज अबाउट द नटराज स्टैच्यू व्हिच वाज इंस्टॉल्ड इन फ्रंट ऑफ द भारत मंडपा टू ग्रेस द V20 venue. We will see why this Bharat Mandapa, why this Nataraj statue was in news and what is the significance of this particular Nataraj statue के बारे में डिटेल्स में हम इस पर्टिकुलर सेशंस पे डिस्कस करेंगे। आप बस इस पर्टिकुलर सेशंस के अंत तक बने रहिए एंड आई गारंटी, आई एश्योर यू दैट द टाइम वॉट एवर यू विल स्पेंड इन वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशंस विल गिव यू ए 5x रिटर्न, 5 टाइम्स रिटर्न आपको इसमें से मिलने वाला है। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा एंड डेफिनेटली अपने दोस्तों के बीच में इस पर्टिकुलर सेशंस, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक को शेयर कर कीजिएगा। So let us see in details what is this particular Nataraj statue is all about, what is the significance of this Nataraj statue and who has crafted this particular Nataraj statue and what is the technique that was used for constructing या building या this one crafting this particular Nataraj statue. We will see in details in this particular session. As we know that our country India has hosted the G20 meeting of 2023 and this is the 18th G20 summit which was held in New Delhi and फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग, इस मीटिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक नया सा बिल्डिंग कंस्टिट्यूट कंस्ट्रक्ट की गई थी एंड दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ द बिल्डिंग वाज भारत मंडपम। और भारत मंडपम जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थे, सिर्फ और सिर्फ G20 के जो मीटिंग्स थे, G20 के जो सबमिट थे, उसको मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर भारत मंडपम यानी कि G20 के जो वेन्यू थे उसका फ्रंट पे इन द एंट्री गेट, इन द फर्स्ट एंट्री गेट पे सबसे पहले आपको दिखाई देंगे एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई देंगे एंड दैट पर्टिकुलर मूर्ति या इस पर्टिकुलर स्टैच्यू was the Nataraj statue as already we know it and which shows the Lord Shiva in his dancing postures. This particular statue, Nataraj statue, has been created in the Solar tradition which was prevalent in the southern part of the India in the 9th century, which was, and this particular statue has been made by the Srikant Satyappa. In this particular statue को बनाने में in total 8 metal has been used जिसको हम कहते हैं अष्ट धातु, which comprises of 87% of copper, 10% of zinc, 3% of lead and small proportion of tin, silver, gold, mercury and iron. In total, the weight of this particular Nataraj statue was 20 tons and it was about 27 foot tall. और इस particular Nataraj statue को lost wax casting method से बनाया गया था by the sculptor from the Swamimalai in Tanjavur district of Tamil Nadu. Here the total cost for making this particular Nataraj statue was 10 crores. इसको लगभग 7 महीना 7 month लग गए थे इस particular structure, इस particular मूर्ति को बनाने में और कुल मिला के इसका cost कितने हैं 10 crores से। Moving on forward, let me tell you about the sculptor. जो sculptor बनाए गए थे that was made by the meticulously crafted by the team of artisan from Swami Malai. It is a small town. It's a small town, or you can say renowned town for the traditional metalwork in Tamil Nadu, which is in the southern part of the India. The primary sculptor behind, the man behind this particular piece of beautiful work is 67-year-old Srikant Satyappa. He, along with his brother Radhakrishna Satyappa and Swaminath Satyappa, was entrusted for sculpting this particular Nataraj statue, which was installed finally it was installed in the front of the Bharat Mandapa, which was the Bharat Mandapam, which was the venue for the G20 meeting. And the Satyappa family has been involved in this metal work, in this sculpting work since 34th generation. And somewhere or the other way, we can see that this particular family has iska root, they belong to the Solar era se belong karte. And their tradition by tradition या generation by generation they were involved, this particular family has been involved in this particular sculpting work only. और जहाँ तक इस सत्यप्पा फैमिली के बारे में ये जो ट्रेनिंग या ये जो स्कल्पटिंग की नॉलेज है इन लोगों को कहाँ से मिला, दे गॉट द ट्रेनिंग फ्रॉम द गुरुकुल ट्रेनिंग। इन लोगों को गुरुकुल द्वारा प्राप्त की गई है ये पर्टिकुलर sculpting इस particular skills को, which has been passed on to the generation by generation from the ancient time, from the Solar empire, somewhere or the other where this family has their root from the Solar empire, and from their tradition by tradition, generation by generation after generation, this particular sculpting skills has been passed on to the generation and next generation. Ultimately this particular project has drawn the inspirations from 3 revered Nataraj idol from the Tillai Nataraj temple in Chittambaram, Uma Maheshwari temple in Konikarpuram,
Konirajanpuram and the UNESCO World Heritage Site of Brihadeswara Temple in Tanjavur. और अभी आप सबको बता दो थोड़ा सा लो वैक्स कास्टिंग मेथड के बारे में भी आप सबको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. एंड दिस पर्टिकुलर लो वैक्स कास्टिंग मेथड में जनरली क्या करते हैं, किसी भी जो भी स्कल्पटिंग या जो भी मूर्तियाँ आपको बनाने होंगे, जो भी शेप आप बनाने जा रहा है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वैक्स से एक पर्टिकुलर फार्मा बनाया जाता है. एंड दैट पर्टिकुलर वैक्स हैज बीन मेड विद द एल्यूवियल सोइल एंड दैट इज फाउंड ओनली इन द कावेरी रिवर. ऑन द बैंक ऑफ द कावेरी रिवर दिस पर्टिकुलर वैक्स या जो एल्यूवियल सोइल है, वैक्स को बनाने में, फार्मा बनाने में यूज करती है. एंड वंस जो भी मूर्तियां या जो भी शेप आपको स्कल्पटिंग करने हैं, उसका एक फार्मा बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्यूवियल पेस्ट व्हिच इज फाउंड इन द बैंक ऑफ द कावेरी रिवर, जिसको हम कावेरी क्ले के नाम से भी जाने जाते हैं. वंस दिस पर्टिकुलर फार्मा हैज बीन मेड, उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी है मेटल का जो लिक्विडिफाइड फॉर्म पे इसको लिक्विड करके उसके अंदर जस्ट यूज टू पोर दैट पर्टिकुलर लिक्विड इनटू दैट पर्टिकुलर फार्मा. और अल्टीमेटली वंस द मेटल कूल डाउन, इट विल टेक द शेप ऑफ द फिगर व्हिच यू वांटेड टू स्कल्प्ट इट. सो सबसे पहले जो भी चीज आपको स्कल्प करनी है, उसका शेप इन साइज लॉस्ट कास्ट वेस्टिंग मेथड से उसको ना एक एल्यूवियल सॉइल के द्वारा उसको बनाया जाता है. उसका अंदर बस उसको लिक्विड मेटल्स को हम डाल देंगे, पोर करेंगे. अल्टीमेटली इट विल टेक द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर मूर्तियां जो भी आप शेप बनाना चाहते हैं. एंड वंस इट लिक्विडिफाई, वैक्स को हम निकाल देंगे. अल्टीमेटली फाइनली यू गेट दिस पर्टिकुलर शेप. उसी मेथड्स को हम कहते हैं लो वैक्स कास्टिंग मेथड्स. मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर ट्रेडिशन ऑफ अष्टधातु. इनिशियली जो मेटल वर्क थे, इसको सिर्फ और सिर्फ पंजा लोहा से ही बनाया जाते थे. एंड लेटर ऑन क्या हुआ है कि दिस पर्टिकुलर जो मेटल वर्क है, इसको अष्टधातु यानी कि 8 मेटल को इकट्ठे करके बनाने लग गए थे. At the same time, the collaborative effort of Srikant and Satyapa and along with his brother has really something to be mesmerized. And his two brother in creating the base wax method result in, इसको कितने महीने लग गए थे? In total 7 महीने लग गए थे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को. इस पर्टिकुलर जो नटराज स्टैच्यू आप भारत मंडपा जो कि G20 वेन्यू के आगे जो आपको दिखाई देंगे ऑन द एंट्रेंस पॉइंट पे, इसको कुल बनाने में कितने महीने लग गए थे? 7 महीने लग गए थे. एंड टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर नटराज स्टैच्यू was how much? 10 करोड़ लग गए थे. सो फाइनली आई होप ये जो नटराज स्टैच्यू को लेके आपका मन में जितने भी डाउट्स थे, आई होप आई एम एबल टू क्लियर यू रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस ऑफ नटराज स्टैच्यू व्हिच इज ग्रेसेस द G20 समिट वेन्यू इन फ्रंट ऑफ द भारत मंडपा. सो अगर आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, देन डेफिनेटली यू कैन लीव ए मैसेज इन माई कॉमेंट सेक्शंस. और इसी तरह से आप देखते रहिए और अगले वीडियोस, अगले सेशंस में आप सबको फिर से मिलेंगे. टिल देन लाइक, सब्सक्राइब और इस पर्टिकुलर चैनल्स को हो सके तो अपने दोस्तों का बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा. टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच.